किसान आदिवासी एक समान, किसान आदिवासी का नारा है भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। भारत के आदिवासी एक हो। जय आदिवासी। जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा 5 વર્ષથી વિચારમાં હતી કે કાઢવી જોઈએ, પણ ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણી આવી જાય કે કોરોના આવી ગયો, 5 વર્ષ લેટ થયું, પણ આ વખતે નિર્ણયકાર છીનવાઈ રહ્યા છે અને આપણા જે ભારતના મૂળ માલિક તરીકેના જે વિશેષાધિકારો છે એ આપણને મળતા નથી. એટલે આ બધા કારણોને લઈને યાત્રા ઝારખંડ બિરસા મુંડાના ગાંવ ઉલીહાતુથી શરૂ કરવામાં આવી. ઝારખંડથી છત્તીસગઢ આવ્યા, છત્તીસગઢથી મધ્યપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશથી મહારાષ્ટ્ર, મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત ને ગુજરાતથી હમણાં રાજસ્થાનમાં આવી ગયા. હજુ સુધી કોઈ વાર નીકળી નથી. આ ઐતિહાસિક યાત્રા છે. આ ઐતિહાસિક યાત્રા છે ને 3 સંદેશ લઈને નીકળી છે. પહેલો સંદેશ છે વૈચારિક એકીકરણ આવે બધા રાજ્યોમાં. આજ આપણે 781 સમુદાયોમાં વેચાઈ ગયા છે. ભારતનો આદિવાસી સમાજ એક છે, પણ એના 781 સમુદાયોમાં વેચાઈ ગયા છે. એ પોતાની રીતિ રૂઢી પરંપરા પ્રમાણે પોતાના ક્ષેત્રમાં પોતાનો વિચાર લઈને જીવે, પણ જ્યારે આદિવાસીની વાત આવે ત્યારે ભારતનો આદિવાસી એક થવો જોઈએ. તો આ વૈચારિક એકીકરણ અમારો પહેલો સંદેશ. બીજો સંદેશ છે સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિકરણ. સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિકરણ એટલા સારું છે કે આપણી જે ઓળખ છે, આપણા આદિવાસી જે કહેવાય રહ્યા એની ઓળખ છે સંસ્કૃતિ. આપણે કોઈ જાતિથી નથી ઓળખાતા કે ની કોઈ ધર્મથી ઓળખાતા. આપણે ઓળખાઈ રહી આપણી સંસ્કૃતિ ને આપણી સભ્યતાથી. જો આપણે આપણી સંસ્કૃતિ છોડી દઈએ અને જે આ બધા ગેર આદિવાસીઓ છે એની વહાણે લાગી જાય તો આપણે આપણી સંસ્કૃતિ પર આપણે જાતે જ તરાપ મારી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે આપણી સંસ્કૃતિને આપણે જાણ એને ભૂલવા સારું આપણે જાતે પ્રયત્નો કરી રહ્યા એવું થાય. એટલે આપણી સંસ્કૃતિ આપણે જાળવી રાખવા માટે આપણે કોઈ દરની ધર્મની કટ્ટરતા કરવી જોઈએ, ની કોઈ જાતિની કટ્ટરતા કરવી જોઈએ, ની કોઈ સંપ્રદાયની કટ્ટરતા કરવી જોઈએ. આપણે આપણી કટ્ટરતા કરવાની છે આપણી સંસ્કૃતિની. આપણી સંસ્કૃતિમાં કંઈનો બીજો ઘૂસવો નહીં જોઈએ અને આપણે બીજાની સંસ્કૃતિ આપણામાં ઘાલવી નહીં જોઈએ. એ આ સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિકરણનો મુદ્દો અમારો સંદેશ બીજો છે. 9 ઓગસ્ટની રેલીઓમાં ભાગ છે. આજ અમે અહીંયા તમારા ગામમાં આવ્યા, આટલા બધા ભેગા થયા, સમાજ જાગૃત છે. એટલે એમાં બધા રાજ્યોમાં થયું. જઈ અમે ગયા ત્યાં બધા ભેગા થયા. એનો મતલબ એમ છે કે સમાજ માંગી રહ્યો છે કે હાલો આપણે એક કિકમ થાય. એટલે સમાજ જેટલા જાગૃત થયા છે એટલા ભેગા થઈ જાય છે. એનો મતલબ કે સમાજ જાગૃત છે, પણ એનું જે રાજનીતિક જાગૃતતામાં પરિણામ આપણને મળવું જોઈએ હજુ સુધી મળતું નથી. એટલે સમાજ જાગૃતતાને આપણે રાજનીતિક જાગૃતતામાં હાવ ફેરવવી પડે. આ હું કા કર્યા શરૂઆત અમે જે ઝારખંડથી કરીને, ઝારખંડમાં નાના પોરિયાથી લઈને બુઝુર્ગ હોય એને તમે પૂછો ને એ એક વાત કહે કે મુખ્યમંત્રી તો અમારો હોવો જોઈએ. હે ઝારખંડ જ્યારથી બન્યું છે ત્યારથી મુખ્યમંત્રી આદિવાસી, બીજા ગેર આદિવાસી હતી ત્યાં રહી રહ્યા, પણ એનું કંઈ નહીં ચાલે. મુખ્યમંત્રી આપણો હોવો જોઈએ. એવું નામ રાજનીતિ કેવી કુટી કુટીને ભરેલી. સમાજ હારું, સમાજ જાગૃતતાની હું રાજનીતિક જાગૃતતા ફેરવી છે. એવના ગામોમાં કઈ તો ભાજપ કોંગ્રેસનો ઝંડો ફાળવાની જડે હી બોલે ઇન પર હરકાવ દે. એટલે આ જે સમાજ જાગૃતતાની જે રાજનીતિક જાગૃતતા ફેરવવાનું છે એ 80-90% થઈ ગયું નહીં. એટલે એ જાગૃત એટલો થયો છે એવું આપણે બધા રાજ્યોમાં જાગૃત થાય. અને આ બધા ગેર આદિવાસીના પક્ષો છે એને ખમ ભાળવાનું બી નહીં, કારણ કે એને ભાળવામાં આજે આપણે આપણા સમાજના પહેલાંના આઘાડીના ઘણા લીડર એમાં મોકલી દીધા અને એના લીધે એ નેતા ગુલામ બની જાય. એમાં આપણો સમાજ હું કા ગુલામ બને. એટલે જે આપણે અઘાડીની જે ભૂલો કરી છે એ બધી ભૂલ હાવ સ્વીકાર કરી આપણે અને અઘાડી સમાજ જાગૃતતા રાજનીતિક જાગૃતતામાં આપણે ફેરવીએ. આ જે 3 સંદેશ છે એ બધાના ઘેર ઘેર પહોંચે, ગામ ગામ પહોંચે એ ખાસ જરૂરી છે. કારણ કે જઈ અમે આઘાડી ફર્યા જે રાજ્યોમાં એમને આ 3 સંદેશ લઈને જાગૃતતા કરવાની ચાલુ કરી દીધી.
કે આપણે વિચારોમાં એક થઈ જવું પડે અને સંસ્કૃતિ આપણે જે બધી બહારથી કંઈક જરીક બી આવી ગઈ હોય એ નથી આપણે કાઢ નાખવી પડે અને સામાજિકની જાગૃતતા છે જ અને સમાજ જાગૃતતાની સાથે આપણે હાવીમાં રાજનીતિક જાગૃતતા લાવવી પડે નેતા દેશ આપણી કાયમની એકની એક ભૂલો ગેર આદિવાસીની પક્ષોની વાહણે લાગી જાય અને આપણો એક માણસ એહુની વાહણે લાગી જાય અને આખા સમાજને હિમણી દોરી જાય તો એના લીધે આજે આપણે દેશ આઝાદ થયા પછી અત્યાર સુધી મેં આપણે પરિસ્થિતિ શું થઈ ગઈ આપણે ભાગીરા હે આજ આપણે લડીને થાકી આંદોલનો કરી કલેક્ટરનો ઘેરાવ કરી બધું કરી પણ ત્યાં આપણો સમૂહ નહીં મળે મોટો વિધાનસભામાં ભારી મોટો સમૂહ જોઈ હી નહીં મળે એક માણા બોલે 5 માણા ટેકો હાલનાર તઈ જોઈ હજુ સુધી આપણે તઈ પહોંચ્યા નથી એટલે હાલકીની 3 વસ્તુ પર તમારે ધ્યાન રાખવી પડે સમાજ જાગૃતતા તો પાકી થઈ ગઈ છે એટલે વૈચારિક એકીકરણ કિકમ થવું જોઈએ રાજનીતિ સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિકરણ કિકમ થવું જોઈએ અને સામાજિક અને રાજનીતિક જાગૃતતા પર ધ્યાન રાખજો આ 3 સંદેશ ઘેર પહોંચે ही અમે કહેવા સારું બધે ગામ નીકળેલા છે અને અમારા રાજસ્થાન પછી અમે રાજસ્થાન ને ગુજરાતની બોર્ડર પર પાલ દડવાઓ ગામ છે ત્યાં 1200 આદિવાસી અંગ્રેજોના સમયે હત્યા કરવામાં આવેલી આ માનગઢ જેવું જ છે એ ત્યાં આ યાત્રાની સમાપ્તિ કરું એટલે તમે બધા હિમાં આવજો એવું આ તમુલ સહેલું આમંત્રણ હતી આલીને અમે જાય છે भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा। ये हमारा मंडल अध्यक्ष। अच्छा क्या नाम है? યાત્રા 3 સંદેશ લઈને નીકળી છે પહેલો સંદેશ છે આદિવાસી સમાજમાં વૈચારિક એકીકરણ આવે આ વૈચારિક એકીકરણ એટલે આજ આપણા આખા ભારત દેશમાં આપણો આદિવાસી સમાજ એક છે પણ 781 સમુદાયમાં વહેંચાઈ ગયો 781 સમુદાય પોતાની રીતિ રૂઢી પરંપરા પ્રમાણે પોતાના ક્ષેત્રમાં પોતાનો વિચાર લઈને જીવી રહી તો આપણે કોઈ ધર્મની કટ્ટરતા નહીં કરવાની કોઈ જાતિની કટ્ટરતા નહીં કરવાની કોઈ સંપ્રદાયોની કટ્ટરતા નહીં કરવાની આ પણ કટ્ટરતા કરવાની આપણી સંસ્કૃતિ કઈનાની સંસ્કૃતિ આપણામાં આવી નહીં જોઈ અને આપણી સંસ્કૃતિની આપણે હાચવી રાખવાની જો આપણી સંસ્કૃતિ આપણે હાચવી રાખી તો હજી આપણા વિચારો ધીરે ધીરે બધાના એક થતા જાય એટલે પહેલો સંદેશ તૈયારી કર્યા પછી એ સંસદ સભા વિધાનસભામાં અવાજ ઉઠાવવા સારું તૈયાર થાય નહીં કારણ કે ગેર આદિવાસીના પક્ષોમાં આપણા આદિવાસીના હક અધિકારની વાત કરવા હારાય એ હું તૈયાર કરે નહીં અને હું ગેર આદિવાસીના વોટ કઈ આલવાના કે આપણે ગુલામ બને નહીં દેશની આઝાદીની પહેલાની વાત કરું તો રાજા રજવાડામાં આદિવાસી ગુલામ નથી બન્યો અંગ્રેજો વખત હતી ગુલામ નથી બન્યો હતા ગેર આદિવાસીની પક્ષોની વાણે લાગીને આપણે હમણાં ગુલામ બને એ આપણું શોભા હાલેલું એટલે આવ તો આપણું ને અત્યાર સુધી આપણને એવું કોઈ હતું નહીં ગેર આદિવાસીઓની વાણે લાગે એવું કરી રાખેલું પણ હાવ આપણું પોતાનું ઘોર બન્યું હોય તેની વાણે લાગવાનું ને આપણા સમાજનું ભલું કિકમ થાય ને આપણો હક અધિકાર કિકમ મળે અને આપણા મૂળ માલિક તરીકેના વિશેષાધિકારો છે ભારતનો મૂળ માલિક કોણ છે એની પોતાની રાજનીતિ નાળી હોવી જોઈએ તો જ આપણે આપણું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું નહીં તો આ જે 3 સંદેશ છે આ બીજા રાજ્યો હવે બધે સંભળાયા બધા રેડી થઈ ગયા હજુ આ મહારાષ્ટ્ર ને મધ્યપ્રદેશમાં છત્તીસગઢમાં ઝારખંડમાં जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा जिंदाबाद। आदिवासी की क्या पहचान, मातृभाषा से एक समान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, बिरसा तेरे सपनों को जिंदाबाद। अबुआ दिसोम, अबुआ दिसोम, अबुआ राज। શરૂ કરવામાં આવી છે બધે થાયરું છે કેન્દ્ર સરકારના પરિપત્ર નાળા રાજ્ય સરકારના નાળા અને પાછા જિલ્લાના હજી નાળા થઈ જાય એટલે આપણા કિકમ પૂરા કરવા એના હકસો તેમજ અન્ય ગેર આદિવાસી એ બધા જ આમાં તૈયાર છે કે આદિવાસી કિકમ છૂટા પાડ દેવાની યાત્રા 3 સંદેશ લઈને નીકળી છે ફળિયાવાળો જાણે અમારું છે તો વિભાજન આપણે ત્યાં સુધી આવી ગયા છે જ્યારે ભારતનો આદિવાસી એક છે આપણે ફળિયાની વાત કરી રહ્યા ગામની વાત કરી રહ્યા
આવા તાલુકા જિલ્લા રાજ્ય છોડીને હજી આપણે ભારતના એક આદિવાસી થવું પડે, કારણ કે આદિવાસીના હક અધિકારની વાત આવે બધા અહીં આદિવાસીના હારું લડવા હારું તૈયાર થવું પડે, એક વિચાર પર આવવું પડે, ભારતના મૂળ માલિકના વિશેષ અધિકારોની વાત આવે તો હજી એક થવું પડે. આ વૈચારિક એકીકરણ એના સારું જરૂરી છે. આપણે બીજો સંદેશ છે સાંસ્કૃતિક શુદ્ધિકરણનો. આ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા જાળવવી પડે. પહેલાની સંસ્કૃતિ આપણે એટલી સાદગી હતી કે કઈ તક આ 200 માણસ હતી ગામમાં આવી ગયા હોય, મીઠું એકલું બહારથી લાવવું પડતું, બધું ગામમાં ખાઈ જતું, પહોરીઓ ભરેલી રહેતી. આ દેશની આઝાદી થાય એમાં હતી બધાના, કોઈ એવા ગોરું નહીં મળે જેના ત્યાં સાલી પસાર ડોબા નહીં હોય. આજ આપણે ધૂળ મૂળના ધર્મ જ નહીં પડી રહી. આજથી 15 વર્ષ પહેલા જે તહેવારો નહીં થતેલા એ હતી ગેર આદિવાસીઓના તહેવારો હજુ ગામોમાં થવા માંડી ગયા. તો એના લીધે આપણી સંસ્કૃતિ પર ભારે મોટી તરફ વાગે છે. તો આ સંસ્કૃતિની જાળવણી કરવી એ આ બીજો સંદેશ છે. અને ત્રીજો સંદેશ છે અધિકારો વિશે હજી બોલવા રેડી નહીં થાય તો પછી એવા પક્ષોના અત્યાર સુધીને આપણે જીતાડેલા આપણા આ કઈની પરિસ્થિતિમાં આવી ગયા. રાજનીતિક જાગૃતતા આપણી ઝીરો થઈ ગઈ છે. ઝારખંડમાં અમે યાત્રાની શરૂઆત કરી, પહેલે જ અમે ભાળ્યું નાનું પોરિયુંથી લઈને ડોકરો માણા હોય ને એ હતો એમ કે અમારા ઝારખંડની અંદર મુખ્યમંત્રી અમારો આદિવાસી હોવો જોઈએ. એટલો તેઓનો બુલંદ અવાજ છે. એવું નામ આજ આપણે ત્યાં ઘણું બધું મળી રહેશે. એ તો આપણને એમ લાગે કેટલા ગરીબ થઈ ગયા છે, સંતોષી જીવ છે. ગરીબ તો નહીં મળે પણ સંતોષી જીવ છે. પણ એવું નામ રાજનીતિક જાગૃતતા ઘણી બધી છે. એવના ગામોમાં કહેતા આપણને કે ભાજપના કોંગ્રેસના ઝંડા ભાળવાની જડે એટલી જાગૃતતા છે. એ આપણા નહીં મળે. એવુંના ખૂનમાં એમ બોલે આ આપણા નહીં મળે, આ કોઈ ધન આપણા નહીં થાય. અને જે આપણા છે ને એમાં હજી આપણને પાછા વિચારો સંસ્કૃતિમાં ભાગ પાડવા સારું બધા તૈયાર થયેલા. એટલે રાજનીતિક જાગૃતતા આપણે કિકમ લાવવી જોઈએ. અને હાવ જ્યારે જઈ સુધી આપણા ઘોર નહીં હોય ને તઈ સુધી ભટક્યા બરોબર છે, પણ જીને તન આદિવાસી રાજનીતિકનું આખું ઘોર મળી જાય ને એને તન આપણે પાછું ફરી જવું જોઈએ. અને આપણે એવા આગેવાનોને તૈયાર કરો કે જે વિધાનસભા સંસદ સભાની અંદર જાય અને અવાજ ઉઠાવે હક અધિકાર શું છે, આદિવાસી શું છે અને ભારતના મૂળ માલિક તરીકે મારા વિશેષાધિકારી શું છે. આ બધું આપણને મળે ક્યારે એક હાથે 10-15 માણા વિધાનસભામાં આપણે ભર દઈ ને તાર એક જણો બોલે 9 જણા હુકારો ભરે ટેકો આલે સરકાર आले तारी परिपत्र तैयार करके उसको जिता के भेजेंगे जो समाज का मैंडेट होगा. तो वैसे ही जिला परिषद हो, विधानसभा हो या तो संसद हो, उसमें हम इस तरह से सिलेक्ट करके समाज की ओर से एक बंदे को खड़ा करके गांव जाएंगे. एक साल 1.5 साल लगे, जो भी टाइम लगे. चुनाव तो 5 साल के बाद आते हैं. अपने पास तो पर्याप्त समय है एक उम्मीदवार को तैयार करने के लिए. तो गांव से हर ग्राम सभा से राय लेके एक उम्मीदवार को तैयार करके समाज के नाम से उसको मैंडेट देगा. तो समाज उसका हाई कमांड होगा, तो उसको समाज का काम करना पड़ेगा, तो वो जाएगा कहाँ. तो इसलिए अब ये सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में हमें पलटने का वक्त आ गया है. और आपके पास तो अभी मौका है. राजस्थान में इलेक्शन आ रहे हैं अभी 2-4-5 महीने में, शायद कब तक आ रहे हैं, दिसंबर तक आ रहे हैं ना. हाँ, वहां तक तो इलेक्शन आ रहे हैं. आपके पास अभी ये मौका है वो देश के सारे आदिवासियों को एक उदाहरण पेश करने का, एक मॉडल बना के देने का कि अब वो पार्टी के भरोसे आदिवासी नहीं रहते. हम लोग विगत 10 वर्षों से 2014 से मैं काम करता हूं. तो यहाँ पर जो हमने आदिवासी परिवार के नाम से जन जागरण किया, हमारे बोलने के 3 तरीके थे: जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल पड़ दे. और काम हमारा था सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण का. हम लोगों ने ये काम किया. गांव तक हम पहुंचे, जहां तक हमारे में ताकत रही वहां तक हम पहुंचे. थोड़ा थोड़ा हमने जन जागरण बांसवाड़ा जिले में किया. तो आज हमें आदिवासियों की एकता का प्रतीक विश्व आदिवासी दिवस जो मनने लगा, तब हमको मालूम पड़ा कि आदिवासी जागरूक हो रहा. तो हम लोग हमारे हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए. 5वीं अनुसूची के प्रति हम जागरूक हो गए. और यहाँ के जो हमारे पूर्वज रहे प्रेरणादायक गोविंद गुरु, 1913 का जो मानगढ़ कांड हुआ, किस लिए हुआ उसके बारे में भी हमने पढ़ा और वो भी बातें हमने बताई. मामा जी के बारे में बताया हमने कि उन्होंने भी जल जंगल जमीन का आंदोलन किया, आदिवासियों की सामाजिक एकता स्थापित की, आदिवासियों को पढ़ाए, आश्रम खोले, सब प्रकार का उन्होंने काम किया. और यहाँ पर एक राजनीतिक जागरूकता, यहाँ हमारे कुशलगढ़ क्या पूरे 4 स्टेट में उन्होंने भी काम किया. तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम आज आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर पढ़ा लिखा हो गया, बेरोजगार है, रोजगार है नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी आगे हैं. कहने का मतलब आज कोई कमी नहीं है.
तो हम लोगों के साथ में आज तक जो हमको मिलना चाहिए वो 77 साल में हमको नहीं मिला। आज हम बात करते हैं इस बांसवाड़ा की धरती की, तो यहाँ पर देख लो हमारे 2 मंत्री है। एक मंत्री ने 2013 में हमारा आरक्षण बेच दिया, उन्होंने मांगा 23, उन्होंने 50 डाल दिया। अभी मानगढ़ की पहाड़ी पर राहुल गांधी आता है और हमारे लोग यहाँ से लाखों लोग वहाँ ढोल कुंडी बजा के जाते हैं और वहाँ पर उसकी वाहवाही लेते हैं। और वहाँ आरक्षण किसको दे दिया? ओबीसी को 6%। ये लोग हमको मारने वाले लोग हैं। और 2016 में हमने रीट पिटीशन लगाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने पैसा कलेक्शन करके शेड्यूल एरिया में आरक्षण हमारा है, तो हम उसमें केस को जीते। बल्कि 2016 में बीजेपी ने फिर वो जैसा था कैसा कर दिया, सद्भावी निवासी के नाम से। इस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं। आदिवासी कोड़ को बर्बाद करने का काम 2 नाग कर रहे हैं। उन सपेरों को, उन काले नागों को दूध पिलाना आदिवासी समाज बंद कर देगा, आदिवासी आजाद हो जाएगा। हम लोग सामाजिक एकता से यह काम कर रहे हैं, समाज का ही हम काम कर रहे हैं। पार्टी में हम ज्यादा विश्वास नहीं करते, बल्कि हम लोगों को यह मालूम पड़ गया 10 साल के अंदर कि जब तक हम विधानसभा में नहीं जाएंगे, दिल्ली पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, संसद भवन में, और हमारे सरपंच और हमारे जनपद प्रधान और जिला प्रमुख जब तक नहीं बनेगा, हमारी यूनिटी नहीं बनेगी, तब तक आदिवासी का गरीब शोषित पीड़ित जो दबा हुआ है उसकी आवाज बन के हमारे भाई नहीं जाएंगे, तब तक हमारा आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है। देश में कोई सुनने वाला नहीं है। यह हमने देखा, हमारे 2 राजकुमार और राम प्रसाद जी ने खूब मांगे करी, खूब आवाज उठाई, देश और दुनिया तक इनका मैसेज गया, फिर भी इनको जू तक नहीं रेंगती। उसका कारण क्या? हमारे यहाँ पर कम से कम 34 विधायक आदिवासी के नाम से जाते हैं राजस्थान में, उसमें 2 व्यक्ति आदिवासी की बात करते हैं और दूसरों की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। तो जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उसके अंदर में वो रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ विकास नहीं होता। आज आदिवासी समाज जग गया है और आदिवासी समाज ने उदयपुर संभाग में 17 टीएससी के मेंबर बना दिए, ट्राइबल एडवाइजर कमेटी, जनजाति सलाहकार परिषद। बल्कि यूनिटी हमारी बननी चाहिए। इसलिए हम ज्यादा बात तो नहीं करें। जहाँ राजस्थान की धरती पर बहुत जल्दी 1, 2, 2.5 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में हम लोगों को, इन लोगों को सबक सिखाना है, उनको पूछना है कि तुमने 5 धर्म के दिन कचुमोर कुंडवाल का जो स्थान है पहाड़ी पर 25 से 30 हजार लोग कुशल करके इकट्ठे हुए, तब हमको नींद खुली। मैंने हमको भी पता लगा कि आदिवासी जाग गया। इसलिए आप सब भाई आदिवासी हैं, हम जनजाति थे, हमको आदिवासी बनाया, हम इस देश के मूल मालिक हैं। मूल मालिक की लड़ाई हमको अब राजनीति से लड़नी है। इतनी बात करके मैं आप मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। सबको जय जोहार, जय आदिवासी। वर्तमान में हम जितने भी लोग हैं वह किस लिए लड़ रहे हैं? जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई कोई आज की नहीं है, और आज तो ना तो रजवाड़े हैं ना अंग्रेज हैं, तो आप लड़ किससे रहे हो? और आपकी जल जंगल जमीन को खा कौन रहा है? ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या अंग्रेज है? अंग्रेज तो गए 200 साल राज करने के बाद में, रजवाड़े चले गए। तो वर्तमान में तुम किस लिए लड़ रहे हो? हम कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई किससे? आज 76 साल से जिन राजनीतिक संगठनों ने बारी बारी से राज करते हुए हमारी जो जमीन के ऊपर जिस तरह से रोड निकाले, जिस तरह से फैक्ट्रियां निकाली, और जिस तरह से है उन्होंने आपका जल जंगल जमीन को खत्म किया। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारी रक्षा जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो अन्य के द्वारा जो बनाई गई हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा हो नहीं रही है। तो अब हमने जो विचार किया कि क्यों न हमारी राष्ट्रीय स्तर के आदिवासियों की कोई पार्टी हो और
जो हमारी विधानसभा और संसद में हमारी बात रखे, हमारी पैरवी करे और उसके बाद में हमारी रक्षा, हमारी खुद की जल जंगल जमीन की रक्षा हमारी हम खुद कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट से हम सारे लोग जुड़े, इसलिए हमने प्रैक्टिकली रूप से, जैसे डूंगरपुर के अंदर 2 विधायक जीता है और आज तक जिसने कभी जल जंगल जमीन की बात नहीं किया, आदिवासियों की बात नहीं किया और आदिवासी शब्द का कुछ ने उपयोग नहीं किया, तो आज इन दोनों विधायक ने जाकर के विधानसभा में जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत का नारा देकर के उन्होंने अपनी बात को विधानसभा में रखा और रखने के बाद में हमारी यहाँ की जो पीड़ाएं थी, हमारा यहाँ का जो दुखड़ा था, उन्होंने वहां सरकार के सामने रखा, जो राज्य के सामने आया और पूरे देश के अंदर हमारा मैसेज गया कि नहीं, यहाँ वास्तव में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि हम लोग, हमारी जिस तरह से हमारी जाजम बनती है, हमारा फैसला यहाँ पे होता है, गाँव में होता है, इस तरीके से हमारा जो नेता है, जो हमारा विधायक हो सकता है, जो हमारा मंत्री हो सकता है, जो हमारा सरपंच हो सकता है, जो हमारा प्रधान हो सकता है, उसको हमारी ये जाजम बैठ करके उसको तय करेगा कि हमारे लिए ये आदमी उपयुक्त है, ये व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है, ये हमारी बात को आगे तक पहुंचाएगा, इसको हम सर्वसम्मति से इसको हम आगे करेंगे। इस तरह की व्यवस्था को हम वापस हमारी इस जाजम पे लाना चाहते हैं। तो इस जाजम को मजबूत कराने के लिए ये भाई हमारे बीच में आए हैं। आज 43 दिन से ये इस कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का ये फर्ज बना कि भाई हमारे भाई हमारी बात को लेकर के वहां से आ रहे हैं, तो हम इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है, हम इनका रास्ता दिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए कि आप यहाँ होते हुए यहाँ से निकल जाना, ये रास्ता दिखाने के लिए हम इनके साथ में चल रहे हैं। वरना इनका कारवा, इन्होंने जो मूवमेंट खड़ा किया 9 अगस्त से, उन्होंने जो इनका एप्लीकेशन था, उनका जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, आईजी हो, डीआईजी हो, राष्ट्रीय स्तर के इनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को यही सफल कर रहे हैं। हम तो इनके साथ में सिर्फ ये है कि इनको रास्ता बताने के लिए हम हैं, और प्रशासन इनके साथ में है आगे पीछे कि भाई यहाँ का प्रशासन यहाँ छोड़ेगा इनको, आगे इनका प्रशासन इनको कवर करेगा। इसलिए आप सारे लोगों ने हमारी बात को सुना, इनकी बात को सुना, इनका स्वागत किया इस धोनी माता की धरती के ऊपर। फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद, जोहार, आभार। तीर कमान, आदिवासी एक समान, तीर कमान, आदिवासी एक अरे लड़ेंगे, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। पहुंचाएंगे, हर बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब दिशा, अब दिशा, पहुंचाएंगे। बिरसा तेरे गुलाम जिंदाबाद, बोल गुलाम जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जिंदाबाद। हार पहना है इसको नहीं જવાનું हम જવાનું આર્કિટેક્ચર કદી બધી વસ્તુ જવાનું कौन जी, कौन से किलो? એ રાજેશ
हेलो यार लोग नहीं थे जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आवाज दो आवाज दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे। जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे प्रकृति की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे आवाज दो आदिवासी एकता। जिंदाबाद। आप सभी टाइगर लोगों का खूब खूब जोहार, लाख लाख जोहार। संपूर्ण देश दुनिया में संदेश जाएगा और बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल समाज को जिसकी आवश्यकता है। आप भी करो दादा, करो करो सभी को करो। हेलो आओ भैया, आपकी जय, सबको जोहार है। शानदार जानदार करते रहो। अनिल करो लो, अनिल लो, तुम बोलो अनिल लो। दादा करो करो, स्वागत करो। अभी और आगे टीम खड़ी है, बिल्कुल दादा खड़े रहिएगा फिर लाइन से एकदम। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक सफल हो। आवाज दो आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की आवाज दो। लड़ेंगे भारत देश हमारा है, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम अरे जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। साथियों आवाज दो आवाज दो। लड़ेंगे लड़ेंगे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों आवाज दो। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन से ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले। आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा आज सबसे अहम मुद्दा है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी सभी तरफ से असुरक्षित होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति की घटना देखें, मणिपुर की घटना देखें, और दूसरी भी राजस्थान में कई घटनाएं बन रही है, राजस्थान में गुजरात में घट रही है। तो और हमारे हक अधिकार जो छीने जा रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, तो आदिवासी असुरक्षित होता हुआ हम चारों ओर देख रहे हैं। तभी आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालना जरूरी था और हमने ये निकाला। ये यात्रा करीब 4000 किलोमीटर के अंदाज से हमने निकाली थी, लेकिन कल ही पता चला कि हमारे 6000 किलोमीटर पूरे हो गए और राजस्थान में हम कल प्रवेश किए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। और ये यात्रा 54 दिन तक चलेगी। 9 अगस्त से 2 अक्टूबर को जो अपने मानगढ़ जैसी एक दूसरी जगह है गुजरात में, माल दड़वाव करके साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 7 मार्च 1922 के दिन 1200 आदिवासियों की हत्या की गई। उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा और आपको पर्चा मिलेगा। उस पर्चे में हमारी यात्रा का संदेश है। यात्रा आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए 3 संदेश लेके। उसमें जो पहला संदेश है वो 781 आदिवासी समुदाय जो देश में है उनमें वैचारिक एकीकरण। हम लोग अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं, अपनी अपनी टेरिटरी में स्वतंत्र रहते हुए स्वतंत्र सोच रखते हैं, और इस हिसाब से जब हमारा कॉमन इश्यू होता है तो उसमें हम एक साथ लड़ नहीं सकते। ये हमारा यात्रा का ये 6ठा राज्य है। झारखंड से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होकर राजस्थान में आया है। ये 6 स्टेट में हमने देखा है कि आदिवासी की समस्याएं सारे स्टेट में एक जैसी, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये हमारी समस्या है, दूसरे राज्य की नहीं है, तो और दूसरे राज्य की समस्याओं को हम हमारी समस्या नहीं मानते। इस हिसाब से हम एक होकर नहीं लड़ रहे। तो वैचारिक एकीकरण होगा तो हम सारी समस्याओं पर एक साथ लड़कर पालन करते होंगे, तभी आदिवासी रहेंगे, बाकी आदिवासी की पहचान गंवा देंगे।
तो इसलिए संस्कृति का शुद्धिकरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये उसका परिणाम तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। इतनी जागृति 6-7 साल में आई है, उसके बावजूद भी हमारे पर जो हो रहे अत्याचार आज भी चालू है। हमारे अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और पानी तो हमें मिलता ही नहीं है। तो ये जो समस्या है वो तो जैसे कि तैसी है। तो जागृति का परिणाम क्या? तो अब इस जो हमारी सामाजिक जागृति, इस जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटने का वक्त आया है। जब तक ये सारी समस्या की जड़ अगर अपन देखें तो राजनीति में, क्योंकि संविधान ने हमें प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया है विधानसभा और संसद में, वो इसलिए दिया है कि संसद और विधानसभा में अगर कोई कानून बनता है, कोई नियम बनते हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उस पर आदिवासियों को नुकसान तो नहीं हो रहा, वो देखने का काम उसका। अगर हो रहा है तो उसको रोकने का काम है उसका। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे नेता वो कर ही नहीं है। और नहीं करने की वजह अगर देखोगे तो वो नहीं क्यों कर रहे हैं कि उसको पार्टी की बात सुननी पड़ती है। उसको मैंडेट पार्टी देती है, वोट हम देते हैं, जिताते हम हैं, लेकिन उसको मैंडेट पार्टी देती है। तो जीतने के 1 घंटे बाद वो पार्टी हाईकमान को जाके बोलता है कि भाई अब क्या हुक्म है, जो हुक्म हो मैं करूँगा। जबकि उसको हमारे पास आने चाहिए लोग, भाई आपने हमें जिताया है तो हम क्या करें आपके, लेकिन वो होता नहीं है। तो अब ये समय आया है हमारी स्वतंत्र राजनीति करेगा। आने वाले समय में अगर हम अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करेंगे तो एक वक्त जो हमारे पुरखे कहते थे कि दोनों मुल्ला धनी है, अपने सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई हम देश के मालिक हैं, तो वो हम तब बन सकते हैं कि जब हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हो गए। आने वाले समय में हमें इतना मजबूत होना है कि राजस्थान में अगर कोई सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारी मदद के सिवा कोई बना ना सके। गुजरात में अगर कोई ऐसा चाहता है सरकार बनाना तो हमारी मदद के सिवा कोई बना ना सके। तो ये स्थिति लाने के लिए हमें हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। समाज मालिक है, तो समाज जब मालिक है तो समाज जब मैंडेट दोगा तो बात समाज की करेगा। जैसे अभी 2 विधायक आपके कर रहे हैं यहाँ पर, तो आने वाले में 2 से 20 क्यों नहीं बना सकते हम? और जिस दिन 20 बने उस वक्त यहाँ का सीएम कौन होगा वो कौन तय करेगा? बिल्कुल अपने आदमी बनेगा क्या यहाँ? तो इस दिशा में ये हमें काम करना आज से शुरू करना पड़ेगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जो भी हो, जितना भी हो सके इस बार ये कोशिश कीजिए और जिता के भेजिए, तभी हम आने वाले समय में जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अभी बताया कि राज कर सकेंगे। तो हमारा ये संदेश आप एक आदिवासी तक पहुंचाओ और आने वाले समय में हम फिर से जैसे हमारे पुरखे राज करते थे वैसे करें, वही हम अपेक्षा रखते हैं। और आप लोगों ने हमारे इतना धामधूम से स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जोहार। जो दल लेके बता रहे हैं राजू दादा राजेंद्र जी वल्लवी साहब के नेतृत्व में, आप सभी क्रांतिकारी साथियों का हम वागड़ की धरती से खूब खूब स्वागत करते हैं, जोहार अभिनंदन करते हैं। और बिल्कुल जैसे कि आपने विचारधारा से जागृति क्रांतिकारी परिवर्तन लगातार आ रहा है, लेकिन आज जो आपका ये दल यहाँ पर आया है तो यहाँ वागड़ की धरती से, जिला बांसवाड़ा की धरती से, बांसिया भील की धरती से हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपके जो आज दल आया है तो आप बिल्कुल ये देख रहे हो, ये युवा हैं वो परिवर्तन आपको करके दिखाएंगे और ये बहुत जल्दी आपको वो परिणाम निकल के आएंगे सामने। ये हम संपूर्ण यहाँ जिले के वासियों से, बासिंदों की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं और आपकी यात्रा सफल होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। क्रांति हमेशा युवा लाता है और यहाँ सब युवा खड़े वो क्रांति लाएगी, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और आपको खास एक धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये यात्रा हमें भी पता नहीं था तो हम एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं। शुरू में हमें अंदाज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यात्रा चलती आई, लोगों से मिलते गए, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बुजुर्ग कार्यकर्ता जो उनसे मिले, तब पता चला कि देश में ऐसी यात्रा अभी तक किसी ने नहीं निकाली है और ये पहली यात्रा निकल रही है और इसका हिस्सा आज आप बने हो। बिल्कुल दादा, हम आप जैसे साथियों पर गर्व है, गौरवान्वित हैं और आप जैसे अगुआ हमारे साथ में हैं तो इन युवाओं को किसी भी दूर दूर तक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो अब हमें घाटोल की ओर निकलना है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, राजू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वल्लवी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे राणा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ